Here I'm your dance teacher, Ms. Sugandha Mittal. So today we are again here with a new videos after your examinations. So kids, today I'm going to give you a brief about a Punjabi folk dance. As you all know, I have teach you some basic steps of Punjabi dance, but we have not studied about the Punjabi dance, its culture, what are the basic knowledges. As you know, I am giving you the steps also and some basic knowledge about the dance style also. And having a basic knowledge about the dance style is very must when you are going to execute that, when you're going to learn the basic steps. So kids, here I am today to teach you about, give you some brief knowledge about a cultural dance, Punjabi dance. So let's start with that. So Punjabi dance is an array of folk and religious dances to the Punjabi people indigenous to the Punjab region on the border of India and Pakistan. So the style of Punjabi dance ranges from very high energy to slow and reserved, and there are specific styles for the man and woman. The main Punjabi folk dances for the females is Giddha or Giddha. We can say there is a difference of the spelling, okay, and for man or for both man and woman we can say it's Bhangra or it's Bhangra. There is a major difference between the spellings, Bhangra spellings and Bhangra, okay, it's a little bit difference, okay. Now we come to know that what's special about the Bhangra dance is. Bhangra dance इतना special क्यों है? So Bhangra dance refers to the several forms of folk dances, okay, and the music that is originated from the Punjab regions of India, okay. The dance is generally performed during the Vaisakhi festival that is celebrated to the harvest, and Bhangra has very energetic and very lively tone. When you come to do the Bhangra dance, you feel so energetic, you feel so graceful, and the tone is very similar, very polite, very calm, okay, and the dance is equally spacious. This Bhangra dance is famous in all over the India. Punjabis are very famous for this Bhangra dance, okay. Now I'll give you some tips about the history of Bhangra dance. Bhangra dance हमारा कब आया, कैसे आया, उसका origin कैसे हुआ, okay. The current style in the form of Bhangra formed together in the 1940s as it was involved since, okay, since from the last 1940s a Bhangra dance has been originated, okay. And it's originated as a folk dance celebrated during the time of the harvest. So is the traditionally observed folk dance, okay, instrument. We do Bhangra the instrument also of large drums. You all know that जहाँ drum बजता है वहाँ हमारा Bhangra dance folk dance start होता है. It goes on the large folk dance. जैसे हम अगर कोई भी वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ढोल नगाड़ों पे जो भी बजता है उस पे हम भांगड़ा करते हैं. The people used to play that big dhol on this, okay, and बोलियाँ short sets of lyrics. Lyrics are very short and these are sea stories from the Punjab. हम पंजाबी डांस में क्या करते हैं, पंजाबी तड़के के साथ काम करते हैं. लाइक हम जितने भी हमारी खेती बाड़ी होती है, हम उन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं. पंजाब की जो भी हमारी खुशबू, पंजाब की हमारी जो भी मेन चीज़ें होती हैं, हमारे डांसेस में हम उन सब चीज़ों को हम दिखाते हैं, ओके. द पंजाब पीपल आर exuberance and enthusiasm and a strongly discipline in the folk dances. उनका बहुत मेन करेक्टर होता है फोक डांसेस में. सो द स्टेप्स ऑफ फुल ऑफ स्पीच, हम जो भी स्टेप्स करते हैं फुल स्पीच के साथ, मजे से, फुल एनर्जेटिक के साथ हम करते हैं, मूवमेंट्स के साथ हम करते हैं. एंड इट इज़ अ हार्ड डांस. पंजाबी डांस में जो भी पंजाबी पीपल्स होते हैं वो दिल खोल कर डांस करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से वो लोग स्प्रेड करते हैं, दिखाते हैं, ओके. सो पंजाबी डांसेस आर द
Basically, it's a direct representation of the energy and enthusiasm of Punjabi's vibrant youth. पंजाबियों के अंदर डांस करने की, अपने कल्चर को दिखाने की, एक किसी भी फेस्टिवल को खुशी से मनाने की जितनी उनके अंदर एक एंथुसियाज्म होती है, उनके अंदर एक खुशी होती है, वो सब अपने डांस के थ्रू वो बताते हैं. एंड दिस इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी ग्रेसफुल डांस. वी कम टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस इन पंजाब. हम पंजाब में किस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं. हम भांगड़ा करते हैं, भांगड़ा करके सेलिब्रेट करते हैं. हम झूमर डांसेस करते हैं. हम झूली, जागा, लुडाई, गिद्धा, मालवी, सामी एंड डंकारा. दीज आर सम डांस फॉर्म्स जो भी हम पंजाब में हम करते हैं सेलिब्रेशन के तौर पे. ये पंजाबीज को तो बस डांस करने के लिए ही चाहिए. अब हमने जाना कि भांगड़ा डांस का इन्वेंट कब हुआ था, क्या उसकी कुछ क्वालिटीज हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे. वी लर्न टू नो अबाउट हु इन्वेंटेड भांगड़ा. भांगड़ा डांस बनाया किसने है, ये तो हमें पता होना चाहिए. सो द रूट्स ऑफ मॉडर्न भांगड़ा म्यूजिक एंड डेट बैक टू द ब्रिटिश पंजाबी कम्युनिटी. जब हमारे ब्रिटिश पंजाबी कम्युनिटी थे, उन्होंने बनाया था ब्रिटेन में ड्यूरिंग द 1960s. ब्रिटेन के टाइम में बना था ये वहां पे 1960s में. एंड भांगड़ा गिद्दा folk is the folk dance of Punjab basically, and the dresses that are during a bhangra performances are very bright. जब भी हम भांगड़ा डांस करते हैं तो जो मैंस और वुमेन्स होते हैं, जो भी ड्रेसेस पहनते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्राइट, कलरफुल, चमकदार होती हैं, शाइनिंग होती हैं. एंड द कलरफुल इज सिंबॉलिजाइज, जो उनका कलर का जो होता है वो एक सिंबल होता है जॉयफुल का, सेलिब्रेशन का, वोकेशन का. तो जो भी हम देखते हैं कलरफुल ड्रेस उन्होंने पहनी है, तो वो एक सिंबल है कि वो अपनी खुशी, अपने ओकेशन के बारे में जो उनका उत्साह है वो उस चीज को जाहिर करता है. And since there is a lot of movement associated with this dance form, it is very, very important that the direct allow and the dancers move through it. जैसे गाना बजता है वैसे ही पंजाबियों का अपना अंदर का जो रंग होता है, जो अंदर की जो खुशी होती है, वो उनकी बाहर जाहिर हो जाती है. This is why the clothing of women by the dancers are like loose fitting. Women थोड़ा loose fitting के कपड़े पहनती हैं so as to ensure that body movement gets freely. क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी मूवमेंट फ्री होते हैं उतना ही ज्यादा उनके अंदर का जोश दिखता है. उनकी जो भी हम स्टेप्स होते हैं, जो भी उनकी एनर्जी लेवल होती है, वो हमारी हाई दिखती है. सो द wearing of turban by it is represent to the pride as well as honor of the people of Punjab. हमने देखा होगा पंजाबी लोग जब भी टर्बन बांधते हैं तो वो उनकी प्राइड होती है, उनका ऑनर होता है. तो हर डांस में आप देखोगे पंजाबी डांस में कि उनका जो टर्बन होता है वो बहुत अच्छे से बना हुआ होता है. एंड हर डांस में वो टर्बन पहनते हैं जो उनकी प्राइड को और ऑनर को दिखाता है. ओके. एंड नाउ वुमेन वेयर लॉन्ग फ्लावरिंग क्लोथ्स as well as prize jewelry for elegance and grace. जो हमारी वुमेन्स होती हैं वो लंबे लंबे फ्लावरिंग क्लोथ्स पहनती हैं और एलिगेंस, ग्रेस मतलब ऐसे अट्रैक्टिव क्लोथ्स पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं जो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती हैं. ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि वेयरिंग ऑफ अटायर, कैसे पहने जाते हैं वो कपड़े. द पग हैज टू बी टाइड बिफोर ईच शो. जब भी कोई शो होता है उससे पहले पग टाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और पग वो वाली पग नहीं होती है किड्स की जो हम रेडीमेड लगा देते हैं. इट इज दैट कि जो हम हर शो पे बनाते हैं खुद से. तो पग हमेशा हर शो से पहले टाई करनी होती है. एंड इट इज नॉट रेडीमेड एट ऑल, इट इज ऑलवेज न्यू, खुद टाई करनी पड़ती है. द पग इज अनडाउटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल ड्रेस. मेल ड्रेस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पग टाई करना. एंड नाउ वी कम फॉर द गर्ल्स. गर्ल्स के लिए क्या होता है, द दुपट्टा worn by the woman is usually draped. जब भी ये दुपट्टा वुमेन पहनती है वो यूजली अच्छे से टक होता है, टाइट होता है, ड्रैप होता है ओवर द हेड से लेके पूरा, एंड इज फास्ट टू द ड्रेस एंड सेफ्टी पिन से हम उसको पूरा टक करके रखते हैं.
and so that ensure that it doesn't fall during the performance. हम ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस करते वक्त हमारी ड्रेस इतने से मेंटेन होनी चाहिए कि वो फॉल ना करे कहीं से भी और हम इजीली मूवमेंट कर सके. When wearing the सलवार कमीज, जब लेडीज सलवार कमीज पहनती हैं, the कमीज इज यूजुअली ऑफ कंट्रास्टिंग कलर. हमेशा जो कमीज होती है वो कंट्रास्ट कलर से होती है हमारे सलवार से, मतलब दोनों का कलर बहुत कंट्रास्टिंग होता है, डिफरेंट होता है, कलरफुल होता है फ्रॉम द दुपट्टा एंड द सलवार. एंड दे ऑल्सो लाइक टू adorn themselves with the lot of jewelry. वो अपनी खूब सारी ज्वेलरी से लदी हुई होती है, खूब सारी अच्छी ज्वेलरी पहनती है when they performing, जब वो परफॉर्म करती है. Now, I'd like to tell you about Bhangra dresses for men. First is Pug, the turban which is stylized in a particular way to be named that Pug. It can also be highlighted with a gota or a broad lace. Second, we come for Turtle Tola, an adornment on the turban that looks like a fan. Third is Genta. It's kind of a necklace we can say with what a man wears. Fourth is Kurta, a type of a long shirt what a man wears for the Punjabi dance. And next fifth is Lungi Chadar Tehmad, a decorative cloth that is tied around the waist. हम जो भी वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग टाई करते हैं उसको बोलते हैं लुंगी चादर तहमद. सेकेंड इज सिक्स्थ इज जुगी, अ वेस्ट कोट दैट हैज नो बटन्स. एंड सेवेंथ इज रामल, स्कार्फ्स दैट आर वुमेन ऑन द फिंगर्स. जो भी हम फिंगर्स में बांधते हैं ना, फिंगर्स में वॉर्न करते हैं जो भी मेल्स एंड फीमेल्स, उसको बोलते हैं हम रमाल. नाउ भांगड़ा ड्रेस फॉर वुमेन्स. Women's, first they wore a dupatta. Dupatta is kind of a scarf, okay. Kameez is a type of a shirt they wear. Salwar, loose fitting pants. Tika, jewelry that is worn on the forehead. जो भी forehead पे हम लोग ज्वेलरी लेडीज वेयर करती हैं. Fifth is झुमका, a long earring that a dangle. Then is paranda, tassels worn in the braid. परांदा जो भी हमारे हेयर्स पे लॉन्ग्स पे टाई होता है. सेवेंथ इज सुगी भूल, अ टाइप ऑफ ज्वेलरी वॉर्न ऑन द हेड. एथ इज हार हमीला, अ गोल्ड नेकलेस दैट इज स्टड विद जेम्स. फोर्थ इज बाजू बंद, अ क्लोथ वॉर्म अराउंड द अपर आर्म. And then the last is pajamas, which is anklet. So these are the only just a dressing sense of man and woman. What man wears in Punjabi dance, all the stuffs and all, and what woman wears in the Punjabi dance, all the stuffs. So students, this is very important to you all know first that what are the attire, what attire is used for the Punjabi dances, what are the main things we have to wear in the Punjabi dances. And हर एक कपड़े का, टर्बन का अपना एक अलग रोल है, नेकलेसेस का, लॉन्ग कुर्ता पजामा, कॉन्ट्रास्ट कलर, बहुत कलरफुल कलर पहनना होता है, इन सब का अपना एक अलग रोल होता है. सो kids, here I have given you some brief about this Punjabi folk dance. I hope you all have got some tips about this Punjabi folk dance. Now it will help you to learn the same steps now. तो अब आगे की हम स्टेप्स को पढ़ेंगे, आगे की स्टेप्स को अब हम सीखेंगे क्या है आज जितना हमें नॉलेज गेन किया है. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कम अप विद सम मोर बेसिक डांस स्टेप्स ऑफ पंजाबी फॉर यू ऑल. सो टिल देन प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ पंजाबी डांस बेसिक स्टेप्स. डू वॉच दिस, व्हाट्स द बेसिक नॉलेज ऑफ पंजाबी डांस. Next video will continue with the step formats of Punjabi dance. So till that, be safe, take care and keep dancing, keep studying. Take care. Bye bye.